Okay, I hope uba pangangani tawa pangangani pajana. Communication system chapter physics की last chapter से होने वाला है। First अकोई terminologies खर कुमार होता है। करी करी इसी का अकोई terms नोइना हज़ी terms से इन high level नोइना मुंड दो पत्तो visualize होता है meaning क्या आता है दो सिंपल हाना होता है। First of all introduction ना होता है। Communication ऐसे कहते हैं। Definition अंजे ऐसे it is the act of transmission मतलब transfer of information हाइगेरा नत्रगा message हाइगेरा समझे सिगा information message will convey the same meaning okay from one point to another से पहुंचे कहीं ना communication नत्र चैप्टर की मीनिंग दूँ लगे communication अदर communication है जैसे ज्ञान आता है जाए right now what are we doing आई नो वांगानी सिगन में नताली अपने communicate तभी अहम द classroom द तरोमी अच्छे video के through तभी तभी so से communication को तो communication द अपने elements main elements कोई most important है मतलब वो ये कोई transmitter अदुवेदी channel नत्रगा medium अदुवेदी receiver example अगर हम लोग देखें तो transmitter से हज़िक कहीं ना teacher आयु है अदुवेदी medium से ना classroom दे लेंगे तो दी अदुवेदी classroom वो है नहीं ममांग उन direct ले and then last receiver से कहीं ना no student no ina aina wangang ise receive tawre duwedi process tawre ni atra haidi aina convey to river message to it should make some sense it should make some meaning to you natra haji gaina siga to ba how on ai da nya ta na to dumaina why le that it should make some meaning okay information should be a useful thing duwedi haji ka jikoi to ise kaino since you are not in the classroom transmitter se haji showing ko I am transmitting the information simple the in high is and then medium से कहीं ना हज़ी में classroom में लेके it is through the internet नज़र आई ऐसे में तथाक कोई नहीं नोएदा whatever platform YouTube रा WhatsApp रा whatever it is and receiver से हज़ी से नोए तो मायने simple हज़ी की ना मतलब खल्लस okay okay next अपन ये में से हज़ी block diagram of a generalized communication system जैसा communication system से in general अपन ना जंग को मतलब for example आइना हज़ी ममांग का example पी लिया या oversimplified form में आई transmitter हो है channel से classroom हो है दुबई receiver से नोयो है न चलना आइना transmitter हो है medium दो न चलना channel लो change हो है internet के through दगी receiver से नोयो है that is very oversimplified अदो इतना complicated for example mobile phone दा कोई ना phone number ना मनी call तो रनी मी वाला receive तो रनी ऐसे दियाम simple ना चलना for example miles and miles kilometers and kilometers lakh tar so apoi communicate to ngam se communication se combine thok to no adoni apna gyan dani se ado siga block diagram se example lakali ana previous year se lakare draw the block diagram of a generalized communication system adi ऐसा communication system से कोई ना overall in general जगह को ना combine group हम निहाय को ना कोई combine संगोपना इसको खोल के हम लोग इसको देखना पड़ेगा तो इसको देखते हैं First, अपन ये ले रहे हैं information source. Information source है कहीं ना आई the one who wants to transmit the signal, right? तो मुझसे निकल रहा है आवाज जो भी मैं communicate करना चाहता हूँ. So I am the source of the information. एक मुंडे नहीं बता क्लियर है. Example के तौर पे मैं ले रहा हूँ अभी अभी जो हम लोगों का हो रहा है यहाँ पे information source कौन है? It's me, right? Message signal से कहीं ना message signal से आई मशीन देखने का sound से, right? Sound से ऐने हज़ी का जिंगांग से इमांग दोनों ने ताव पंगे but through the medium of the phone नो ताव पंगे नहीं अदोन आई message signal से सिंगर का ये वाले नहीं कोई की एंगों ने कोई का sound से right okay दोई की अपन ऐसा transmitter है हाई लिखो सिंगर कोई transmitter ले transmitter से करी हुए नहीं suppose ऐने call तो रेन करो ना जैसा कोई कनाबू तो मतलब call तो रेन करो so transmitter से एक कई हुए नहीं आई फोन तो काय चंगे नो माइक्रोफोन द पांड्रा तो एक फोन से ट्रांसमीटर हो रही को एक फोन से सीधा ट्रांसमीटर हो रही PHON आई होप से क्लियर हो रही है को दुगई दी ट्रांसमिटेड सिग्नल का मेसेज सिग्नल का ट्रांसमिटेड सिग्नल का कितना मानना दे से कमाइना नो बिकॉज़ एना ngang इ बट एक्जेक्टली एना हजी एना ngang से एना ताव फंगी से असे मंगना ते नोइना तारे दो मसी से थ्रू मीडियम लागा ट्रांसमिट होने बे जमकता sound से दी हम लाभ नजर पर हमने मसी से कितना अतोप form मतलब अतोप form of energy हज़ी नंगांग से sound energy नहीं right दो मसी से electrical energy जहाँ में convert होगी मतलब होता है को
ꯑꯗꯨꯗꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯇꯦꯗ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜꯁꯤꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯇꯦꯗ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯣꯠꯅ ꯂꯩꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯇꯦꯗ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜꯗ ꯊꯥꯕ ꯂꯥꯞꯅ ꯊꯥꯕ ꯖꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯇꯦꯗ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯂꯣꯠꯍꯟꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯇꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯀꯦ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗꯣ ꯂꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯣꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯜ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯀꯩꯅꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯒꯤꯗ रेडियो वेव्स अभी तमगीदा रेडियो वेव्स को ऊपर फंगते बट फोन से तो कुछ तो निकल रहा है बोल के बोला था ना तो वही हम लोग क्या हो गया चैनल यहाँ पे क्या है चैनल कुछ नहीं है जो कोई की बैकग्राउंड कोई की कैनो ले दीजिए नुकसित ले दीजिए को एटमॉस्फेयर ले दीजिए जिससे कोई चैनल इन डेप्थ है है के थाजे की मतलब उतना ही समझ लो चैनल से को तो चैनल से नॉइज है ना को फंग से नॉइज है नु फंग से कहीं नोंग चुबा मतमदा नेटवर्क माइ तमिन नत्रा वेदर की कंडीशन दो की दमकता कोई की सिग्नल दो अखोई एटमॉस्फेयर प्रोपागेट तौदो मदो खितंग प्रॉब्लम लाको जाएगा को बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशंस और व्हाटएवर इट इज को नंगरी उमर लैंडलाइन दा खंदा आरे नंग खलोने दैट अतुगदी नुक्सित ततेना एटमॉस्फेयर दे तते डायरेक्ट वायर दी थ्रू होनी होई इंफॉर्मेशन से चली से सो इन दैट केस सपोज हारने तारो सिगैना सिगा लैंडलाइन फोन में ले रेन खलो राइट सिगा लैंडलाइन फोन में ले रेन खलो अतुगदी वायर नी कनेक्शन ले दिसे वायर होई के वेरनी वायर से कोई चैनल हो जाती राइट तो सिगम मरक से तार से ले कॉल ले नत्रला पूरा तत्पन नत्रसु इन प्रॉब्लम में लायन खनो तो दो कोई मकोन तो खजना सिगा तालो खनो राइट से कोई ट्रांसमीटर से है ना टीएक्स है ना शॉर्टकट पी लगे हजितगी एंड रिसीवर से आरएक्स है ना पी लगे राइट चैनल से कोई वायर से टेलीफोन में लो एंड सिगम प्रॉब्लम लाता दी मतलब फोटो को इंडियन है रे नॉइस दो सिगा इन नॉइस के एग्जांपल नहीं होती है डिटेलिंग द अखोई टर्म गुण मकी अखोई डेफिनेशन जे नेक्स्ट कहिनो नोय न ता ले दुदी लास्ट आई फोन से ना साउंड नोय न ता फंगे से राइट अदो साउंड दो ता फंगे द सिगा किता प्रोसेस करो है हां प्रोसेस तो मिंग है रखे तो नुचित लाइबा नत्रगा वायर्ड लाइबा अखोई की सिग्नल लो ट्रांसमिटेड सिग्नल लो रिसीवर न दो देबा रिसीव तो रकांदा मसी से अइना कह है यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन बता रहे you guys will be the user of information aba aina ngang se gyan tabang se noina ni na so you will be the user of information aina sai tha ni message signal the sound ni phone dani noina ta hangoi do su phone ni through the speaker ni through the as a sound ni ta hangoi do right but actually the travel to वाला है sound नहीं है ना तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है तुम्हारा मैसेज सिग्नल और ट्रांसमिटेड सिग्नल में वैसे ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है रिसीव सिग्नल और मैसेज सिग्नल में राइट द मैसेज सिग्नल इज द साउंड and ngang is also sounding when phone be through the guitar or also sound right so this is the overall block diagram of a generalized communication system very important you should learn it so kitanga padana clearly and jermani padan jemo block diagram लाता है सेमी जेट में तो ताकि से एग्जांपल भी दे दिया ओके ये और स्क्रीनशॉट वगैरह दर्शा वगैरह नेक्स्ट वीडियो चलो से वन नेक्स्ट इज कोई जे में सी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन सो लेट मी स्टार्ट लाइक दिस सिंगल है ब्लॉक डायग्राम लो करें मोड्स of communication right so mode क्या है communication का mode अनेक होते हैं ठीक है one is first is point to point communication देखते हुए there will be a single transmitter and single receiver right for example telephone की नत्रगा walkie talkie नहीं होंदा walkie talkie में ले रहे हैं तो नॉन walkie talkie में ले रहे हैं तो right अभी लोग कहनो आई ना ये नंग तंगी ताप हो right single transmitter में ले single receiver में ले telephone landline हाना ले हम लोग कहनो कोई point to point communication की example टेलीफोन ओके दूसरी सेकंड से लेना होगी सेकंड से होगी ब्रॉडकास्ट
broadcast communication to broadcast here for example single transmitter lane but receiver mayam male single receiver lane single transmitter but many what receiver example देना example of कोई रेडियो को रेडियो से कोई की ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन की एग्जांपल मनी सिंगल ब्रॉडकास्ट रेडियो स्टेशन अमदगी ब्रॉडकास्ट ऑलरेडी सिग्नल लो रेडियो लेबा कामु कुनो ना नोन से ले नोन से म्याम कुनो ना माना ट्रांसमिट तोरिबो सिग्नल लो रिसीव तबो कोने दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज रेडियो एनोनगी ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन नगी टीवी ले ठीक है टीवी ले ये सब क्या है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन ठीक है so let's move forward okay now we have basic terminologies for the and how you need that apply term khara gi banalo jena kani without them we cannot move forward se sing se khang de ne se words se use to pada me gyan ta ban so first se ko you know transducer definition ha ne si a device that converts one form of energy to another form of energy definition di lai example lagi anta rashi kai no for example apni microphones natraga speakers aina ke gai aina ngang ni bawa se ai source of information natra ai ngon ni thuklei ba message natraga information se kaino ss sound ni ai machin dei thuklei ni natra si se aina noi da alap da aina lautar di zyada se zyada kitna दूर तक सुनाई देगा 10 किलोमीटर तक सुनाई नहीं देगा तो ये जो चीज है उसको तो हम लोग भेज नहीं सकता ट्रांसमिट तो वही आ देना था सो ट्रांसमिट तो वही आना वही दमकता आई साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने में होता है अब ऐसा टाइप ऑफ डिवाइसेस जो मेरा मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन सिग्नल को तुम्हारा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करे या वाइस वर्सा उल्टा से हो जाए दोस टाइप ऑफ डिवाइसेस आर नोन एज ट्रांसड्यूसर फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन के लिए अगर फोन ना माइक्रोफोन से जाओ नट्रा वहां ये तो माइक्रोफोन दो मेंशन लदी ताब होंगे नट्रा अपन ngai को रिसीवर दो ताब होंगे दो माइक्रोफोन से अपन की करी ना ट्रांसड्यूसर मनी एने ngai को साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करी नट्रा सेम अपन फोन के जाओ स्पीकर से जाओ नट्रा नंगना कनानोंगी आई मखोन ताब फंगी से साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगे बनेगा एंड देन नो नता मतम कइनो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे स्पीकर होना साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं तो ऐसा टाइप ऑफ डिवाइसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसड्यूसर डेफिनेशन कह लो दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म यहाँ पे मैंने एग्जांपल अच्छे से दे दिया है सेकंड से कहना कोई सिग्नल अब सिग्नल है ना मैं आप यूज करोगे नहीं दोनों में कंफ्यूजन से बच जाए तो यहाँ पे ज्यादातर क्या होगा मैंने ऐसे सिग्नल आई मीन ट्रांसमिट तो हुए आगे सिग्नल राइट आई ना ngang दी मैसेज सिग्नल ni मसेदी ट्रांसमिट तो हुआ यार सुटेबल हो जाए ना चाहे लाभ ना था हो जाए ज्यादा से ज्यादा कितना चिल्लाऊंगा मैं तो माय डेफिनेशन से ये सिग्नल की इंफॉर्मेशन नत्रगा मैसेज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड suitable for transmission अच्छी ट्रांसमिट तो हुए आने लगी मां से रेडी लेके को दैट थिंग इज नोन एज सिग्नल अभी सिग्नल जो है दो टाइप का हो सकता है अकोई ऑलरेडी किए मेरे प्रीवियस चैप्टर सेमीकंडक्टर एनालॉग एंड डिजिटल राइट सिग्नल से मखन नहीं इशू हो जाए एनालॉग का मीनिंग दैट विद टाइम कंटीन्यूअस होइनी मतलब विद एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम होगी डिफरेंट वैल्यू लेनी दिस टाइप ऑफ सिग्नल्स आर नोन एज analog signals and digital अगर उग्रगनी at any point of time मोगी खाली अनी खत्म लेबा जाए वैल्यू 1 नत्रगा 0 हाई नत्रगा लो राइट फॉर एग्जांपल से ना 1 नेल लगोगे से 0 नेल लगोगे से 1 नेल लगोगे से 0 नेल लगोगे तो मैं जहां पे भी देख लूं मान लो यहाँ पे आंख बंद करके कहीं पे भी मैं पॉइंट कर दूं तो वो क्या हो रहा है 1 नहीं तो 0 ले रहा है तो उससे पहुंचे डिजिटल सिग्नल नहीं कोई सिग्नल से मखन अनी इशू हो जाए ओके और तो नेक्स्ट कोई थिंग है Okay, so continue to watching signal with the optical signals, analog and digital signals. Tana classification extensively used to be. These are known as optical signals. Optical is related to light. Natra optical fiber की through the चक्कर दो. अनिश्चय हमने तो previous chapter कोई change रहा बनी. नंगी total internal reflection तो रहा. Optical fiber की मनुंगा. असमायना something like this. Total internal reflection तो रहा. असमायना light rays travel over the as we know that light is also a what electromagnetic
magnetic wave ado sesu classification ma khagni koi signal ni right analog digital and optical signals. Next yang noise kaino ko already khang gare my definition yang unwanted signals main definition ko se kaino unwanted signals. Unwanted signals that disturbs the transmission of message signals in a communication system right akoi ki thani ba message to akoi na transmit tawde do madhu disturb to signal sing to kai koi noise to nothing else very simple. Although one thing you need to keep in mind akoi ki noise ki source to the source of the noise may be located inside or outside the system. Masigi example ai mere kai bi ngani for example akoi na wari sunari ngai da weather se thalak tana makon da crack lakdo ado noise la ino mado akoi ki noise ki source to kai da lai akoi system ni mapan da le ba akoi system ni kaino ai phone no transmitter nangi phone no transmitter ni akoi ki phone se as a transmitter and a receiver both domain ek to ngami phone la ko tanda as a receiver akoi ek to rani phone se duai ni akoi phone kanon da to ge har ma tanda as a transmitter ek to rani ko ado akoi ki hiji weather no ma to ma tanda network numai ta matamda cracks la ido madu do kaino akogi source of the noise to kaino weather numai ta gi धang पर थंडरिंग एंड लाइनिंग जो एटमॉस्फेयर के ऊपर जो हो रहा है जिसकी वजह से हम लोगों का कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो बाहर है ना सिस्टम का तो इट कैन बी आउटसाइड और इट मे बी बिकॉज ऑफ फॉर एग्जांपल लेट्स से आई फोन की माइक्रोफोन दो कितंग खरा का हुए खलो द स्टिल देयर नो आई फोन दो जना ताबा नो अदोना अखोगी प्रॉब्लम की सोर्स तो सिस्टम मन दया बा सो इट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द सिस्टम राइट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांसमीटर के नो नदी नो खंगे माय डेफिनेशन जगह से प्रॉपर A transmitter processes message signals to make it suitable for transmission and reception. Actually, I na ngang ise message signal ni sound je nadra bas se pose no other lab na transmit to ya ro transmitter ki thabak kai no I na ngang ise message signal se tha ba transmit to ya phone the format the proper transmitter ki thabak ni तो transmitter एक ऐसा चीज है जो message signal को transmit करने लायक suitable form में बनाता है right सिर्फ ट्रांसमिट करने के लिए नहीं रिसीव तो वही सुटेबल फॉर्म है राइट ट्रांसमिट कर दिया लेकिन रिसीव ही नहीं कर पा रहा है तो वो अच्छा नहीं होगा ना तो ट्रांसमिट करने के लिए भी सुटेबल होना चाहिए और रिसीव करने के लिए भी सुटेबल होना चाहिए राइट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिसीवर से कहना रिसीव फाइदी ट्रांसमिट दी तो है मैसेज सिग्नल से ट्रांसमिटेड सिग्नल ऑन करे ट्रांसमिट तो लगा लायक चैनल नेटवर्क मीडियम की थ्रू देगी एंड देन रिसीवर से ना रिसीव सिग्नल से रिसीव तो रबा दो मतुंदा यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट तो दो मैसेज सिग्नल दो बिकॉज़ एन ngang this sound ni noi na gyan ta ngam do su sound ni electrical signal ni noi gyan ta ba ngam receive signal do electrical form da lengni right adona receiver ki thabak kai no haji ki receive electrical signal do akoi ki useful hai the sound information aga mu convert to kana gi chu gi transducer jaw mani obviously on the receiver do right और इसका प्रोसेस कर ले एंड इसका प्रोसेस है ना जैसे ट्रांसमीटर जो प्रोसेस में कर ले मदो को तो मॉड्यूलेशन को भी अदो याम जान ना कोई तो मरंद जाए कनी एंड देन अदो की उल्टा आमा रिसीवर जो प्रोसेस में होय मदो की मीन को भी डीमॉड्यूलेशन को अपोजिट ऑफ मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन इन रिसीवर मॉड्यूलेशन इन ट्रांसमीटर ये क्या होता है हम लोग डेप्थ में थोड़ी देर के बाद जानेंगे नेक्स्ट इज एटेन्युएशन राइट एटेन्युएशन से हां एग्जांपल से ला करे इंपॉर्टेंट ज्ञान दान बोलना attenuation से कहीं ना the loss of strength of a signal while propagating and it travels over through a medium is known as attenuation. हाय दीदी suppose ऐसा हम लोग मान लेते हैं हम लोग का इलेक्ट्रिकल सिग्नल ना ट्रांसमिट हो जाए तो कहीं ना ये साउंड एनर्जी से ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसमिट हो जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में तो क्या है करंट है बोलते से कोई ना हाँ ना चेक करते हैं कि एम्प्लीफिकेशन की मरम्मत तम करे ना सो कोई ना सिग्नल से ट्रांसमिट तो मत अंदा लेट्स से मान की वोल्टेज से लेट्स से 10 वोल्ट भी ठीक है ये हम लोगों का ट्रांसमिट तो वो सिग्नल होगी राइट लेकिन ये यहाँ पे कुछ हुआ एम्प्लीफिकेशन वगैरह हुआ अजीब एम्प्लीफिकेशन मरम्मत कोई कमानी थोड़ा तो आइडिया है एम्प्लीफिकेशन है कि सिग्नल से उसका जो कम था वोल्टेज या फिर जो भी है करंट उसको ज्यादा कर देना राइट एम्प्लीफिकेशन कराना तो हुई एम्प्लीफिकेशन से कराना तो हुई एम्प्लीफायर ना तो हुई राइट अकोई की ट्रांजिस्टर
राइट ट्रांजिस्टर ना तौबी तो सिगा 10 वोल्ट रिमेन कर लो अखोई की एम्पलीफायर से ना एम्पलीफाई तौबरे दो चैनल की थ्रू दगी था करे कर लो राइट एंड देन सिगा मरक का नॉइस वगैरह लाए फॉर व्हाटएवर रीजन ठीक है फॉर व्हाटएवर रीजन मान 10 वोल्ट है यहाँ पे पहुंचते पहुंचते मान लो कितना हो गया मान लेते 1 वोल्ट तो ये 2 वोल्ट कहां पे गायब हो गया एनर्जी लॉस हो गया मतलब मीडियम द ट्रेवल तो ऐसे यहाँ पे उसका लॉस हो गया नॉइस की नमक तो एरम जाए वैसा की नमक तो एरम जाए राइट असे पहुंचे दिस फिनोमेनन इज नोन एज एटेन्युएशन हाइबडी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ सिगा यामा मदगी ट्रांसमिट तब मतमदा लिखगिबदो एनर्जी मागी स्ट्रेंथ से लॉस रेन अथवा दिस इज नोन एज एटेन्युएशन इंपॉर्टेंट है याद रखना इसको चलो नेक्स्ट देखते हैं चलो नेक्स्ट ये है एम्प्लीफिकेशन है तो एम्प्लीफिकेशन की बारे में हम एम्प्लीफिकेशन तो लाए हैं एम्प्लीफिकेशन से कहना ना ऑलरेडी खान ले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड हाइबडी कहना माई स्ट्रेंथ तो मतलब ऑफ ए सिग्नल यूजिंग ए डिवाइस कॉल्ड एम्पलीफायर एम्पलीफायर से की मरंदा कोई हानाला ಅದನ್ನ ಏನು ಲೋರೆ ಅಸೆ ಕದಬಗಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಬರಿಲ್ಲ एम्पलीफाई तो कोई मतलब तारे से कदबगी नो दिस इज इंपॉर्टेंट एम्पलीफाई तो कोई मतलब तारे से कदब पहला रिक्वायर्ड टू कंपेंसेट ठीक है बैलेंस आउट करने के लिए फॉर एटेन्युएशन है बदी एटेन्युएशन हतिता होई जेंगी केनो सिग्नल से था रिदो सपोज सिग्नल को कलम मैन कर लो बट मरकता चैनल द नॉइस लापगी नोता मा सिग्नल से लिखा गया दिस फिनोमेनन इज नोन एज एटेन्युएशन राइट अदो एम्पलीफाई तो गाड़ी करिकाना नहीं जो एग्जांपल में जो सिगा जस्ट सिंपल एग्जांपल मतलब हुई एगी मैसेज सिग्नल से 10 वोल्ट मैन कर लो को अदो सिगा एम्पलीफायर यावन रेन कर लो सपोज एम्पलीफायर नहीं है यहां पे मान लो थोड़ा टाइम के लिए तो यहाँ पे एटेन्युएशन की वजह से कितना बन जाता है एटेन्युएशन की वजह से मान लो 1 वोल्ट बन जाता है राइट लेकिन अभी एम्पलीफायर क्या करेगा एम्पलीफायर का काम तो इसको एम्पलीफाई करना माई स्ट्रेंथ से जामूंगा नत्रा वैसे भी कम वोल्टेज होने से वैसे भी नहीं भेज पाता साउंड यदि हम लाभ न चलो उसको एक ट्रांसमिट तो हुआ ट्रांसमिटेबल सिग्नल कन्वर्ट हो गया कोई एम्पलीफायर की थ्रू द ऑप्शन लगा एम्पलीफायर करनी लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट की 50 वोल्ट ऑन करें राइट हजी कदों में है बता असी से रेडी टू ट्रांसमिट तो हुआ आ रहा है वैसे ट्रांसमिट तो हुआ अगर यहां पे अगर एटेन्युएशन आ भी गया यहां पे अगर एटेन्युएशन आ भी गया तो कितना भी कमेगा 50 से कितना कमेगा हम लोगों का जो मैसेज सिग्नल जो था 10 वोल्ट यहां पे अगर हम लोग मान लो एटेन्युएशन की वजह से 40 वोल्ट भी चला गया से जस्ट बेसिक एग्जांपल में 40 वोल्ट भी अगर चला गया मान लो नॉइस समझी ना तब भी तो हम लोगों का क्या मिलेगा मैसेज सिग्नल तो मिलेगा ना सिग्नल का लॉस नहीं हुआ तो दैट इज व्हाई एम्प्लीफिकेशन इज इंपॉर्टेंट रीजन इंपॉर्टेंट नहीं एम्प्लीफिकेशन है को से करिनो ना ऑलरेडी हां देख हम ले राइट द नेक्स्ट एमसी रेंज रेंज है तो से कहिनो रेंज मतलब लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन है बदी ट्रांसमीटर का रिसीवर का की मतलब क्या हम डिस्टेंस लेवल जाए दैट इज द रेंज अकोई की फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी बाजार में मार्केट का बनी वॉकी टॉकी एमआई रेंज क्या होनी मागी अजी की नंगी मेन्यू दु ले रही फॉर एग्जांपल जब हम जानते हैं वॉकी टॉकी की 5 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा ठीक है और उससे ज्यादा हो गया तो आई ना ngang ino nang tao ko ai na transmit to ino nang receive to ko ठीक है उसको रेंज बोलते हैं द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन नेक्स्ट है सी अपन की वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बैंडविड्थ है हम पर हम ऐसे ट्रू मीनिंग का है ये डेफिनेशन ये इट रिफर्स टू द फ्रीक्वेंसी रेंज अधिक से रेंज से कंफ्यूजन ठीक है दिस इज रिलेटेड टू डिस्टेंस क्या हम डिस्टेंस का अपन की सोर्स एंड डेस्टिनेशन की मदद का कम्युनिकेशन हो जाए दैट इज रेंज से रेंज है सेना नंगी ये रेंज मतलब मान लो 10 से लेके 20 तक ये वाला रेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है इट रिफर्स टू द फ्रीक्वेंसी रेंज क्या रिपोर्ट की रेंज फ्रीक्वेंसी की रेंज तो मान लो ये हर्ट्ज में होगा फॉर एग्जांपल 10 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज ठीक है इस सब चीज को हम लोग बोलते हैं क्या हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ इट रिफर्स टू द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर व्हिच एन इक्विपमेंट कैन ऑपरेट मतलब ओवर व्हिच एन इक्विपमेंट कैन ऑपरेट फॉर एग्जांपल कोई की लाइन ज्ञान ताना भी मतलब इक्विपमेंट से रेडियो नहीं लोगे ठीक है कभी ना कभी तो देखा होगा रेडियो में क्या रहता है स्माइल लेवल नोक तो लेवल जाम वे सिगरेट स्माइल लेवल स्पीड लेवल समथिंग वेरी सिगरेट स्माइल डंडा था कमल लेवल इसको घुमाने से ये इधर उधर जाता है ना तो उसमें तुम ध्यान से देखोगे तो चैनल्स बहुत सारा रहता है चैनल्स आई होती कोई ट्रांसमिट तो होगी चैनल होते हैं रेडियो स्टेशन की कमान लेगी फॉर एग्जांपल 93.5 मेगाहर्ट्ज ठीक है दुए स्टार्ट करोगे ना 108.6 जस्ट एग्जांपल लेंगे नीचे मेगाहर्ट्ज
ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहता है। यही चीज को 93.5 FM बजाते रहो वगैरह वगैरह होता है ना, तो यही चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ बोलेंगे। बैंडविड्थ है कि फ्रीक्वेंसी की रेंज जहां पे हम लोग अपना सिग्नल को ट्रांसमिट कर पा रहा है, या फिर हम लोगों का इक्विपमेंट जो है वो यहाँ से यहाँ तक ऑपरेट कर पा रहा है। मतलब 93.5 के आगे नहीं है, डिवाइस में ही नहीं है, तो कैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे, और 108.6 के बाद नहीं है। तो हम लोगों का फ्रीक्वेंसी जो है, रेंज जो है 93.5 मेगाहर्ट्ज से लेके 108.6 मेगाहर्ट्ज। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी से जानबूझ के ज्यादा ले रहा हूं, इसका रीजन मैं बताऊंगा आगे चल के। तो उससे अपन कह रहे हैं बैंडविड्थ है, ऐसा दिखा सकता है ना। चलो हम से माइनस करो तो जाए, माइनस करो ताड़ी क्या लगानी, 108.6 माइनस 93.5 तो ताड़ी क्या लगानी, 15 क्या लगानी, 15.1, दैट मींस 15.1 मेगाहर्ट्ज होगी फ्रीक्वेंसी रेंज इसके बीच में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। मतलब मान लो 10 से लेके 50 तक तुम बोल सकते हो, या फिर 40 तक ये बोल सकते हो ना। तो एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी को बैंडविड्थ को तुमको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, यहां से यहां तक, या फिर इतना 10 से लेके 50 तक, या फिर 40 कैसे आया, 10 माइनस 50 माइनस 10 करके, तो इसको बोलते हैं हम लोग का बैंडविड्थ। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, टर्मिनोलॉजीज का से चैप्टर से ही अकॉर्डिंग टू द चैप्टर 5 द इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ध्यान से सुनना। इसका हम लोग डेफिनेशन पहले समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर ही क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस टर्मिनोलॉजीज को भी हम लोग थोड़ा तोड़ के इन डेप्थ में समझने का कोशिश करेंगे। तो सो पे क्लोज अटेंशन, राइट। मॉड्यूलेशन, हाय इधर मॉड्यूलेशन से क्या होगा, मॉड्यूलेशन कहां पे होता है, मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर में होता है, राइट। ट्रांसमीटर की थबक कहना अपन की साउंड से आई की सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन में होना, मुझसे जो मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन जो निकल रहा है वो उसको तो ट्रांसमिट नहीं कर सकता, क्योंकि कितना तक चिल्लाऊंगा, राइट। मेरा जो मैसेज या फिर साउंड एनर्जी जो है वो बहुत कम है, तो ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएगा, वो डाई आउट हो जाएगा। इवन 1 किलोमीटर वक्त जब नताब होंगे, थोड़ा सा दूरी में ही वो सम 100 मीटर्स तक खत्म हो जाएगा, राइट। तो उसको तो भेज नहीं सकता हम लोग, तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए दूसरा ट्रांसमिटेबल सुइटेबल फॉर्म जो है कन्वर्ट हो रहा, तो उस प्रोसेस है ना, कौन महाई लिखा, वही प्रोसेस का नाम क्या है, मॉड्यूलेशन। सिंपल डेफिनेशन देख लो, इट इज द प्रोसेस इन व्हिच सम कैरेक्टरिस्टिक्स एम्पलीट्यूड हो जाए, है ना, फ्रीक्वेंसी हो जाए, नत्रगा फेज हो जाए, राइट। अनंबर होय ना थारीबा केनो से सिग्नल से ये क्या रहता है, एसी फॉर्म में रहता है, डीसी फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है। और एसी में हम लोगों ने सीखा था कि एक एसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है और फेज भी रहता है, फेज एंगल का नाम हाई हो, राइट। ऑफ ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, कैरियर से दिमाग में क्या आता है, जो चीज कैरी करके लेके जाता है, ठीक है, जो चीज कैरी करके लेके जाता है इसको कैरियर बोलते हैं। तो यहाँ पे किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग चेंज कर रहे हैं, कैरियर वेव को, आपको की मैसेज तो गिनते कैरियर वेव का हम लोग क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड नहीं तो फ्रीक्वेंसी नहीं तो फेज, तीनों एक साथ भी कर सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग से करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो मैसेज सिग्नल है उसका तो फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, और हमको पता है कि जितना फ्रीक्वेंसी लो रहता है उतना ही एनर्जी भी क्या रहता है, कम रहता है। तो कम एनर्जी है तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, तो हम लोग को दूर तक भेजना है, तो हम लोगों का सिग्नल के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होना चाहिए। और हम लोगों को पता है, EM वेव चैप्टर में पढ़ा था कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा। तो यहाँ पे मान लो ये हम लोगों का क्या है, मैसेज सिग्नल है, राइट। इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, एनर्जी भी बहुत कम है, क्या बोला, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है और एनर्जी भी बहुत कम है, राइट। ऐसे EM वेव चलते हुए ना, एंड वी नो दैट EM वेव की खासियत क्या है, EM वेव का खास बात क्या था, EM वेव का खास बात ये था कि EM वेव जो है एनर्जी कैरी करके लेके जाता है कि नहीं। तो कम एनर्जी कम डिस्टेंस तक जाएगा, ज्यादा एनर्जी ज्यादा डिस्टेंस तक जाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई मेरा आवाज उतना ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचता, लो फ्रीक्वेंसी है, लो एनर्जी है। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, दूर तक भेजना है, तो हम लोग का सिग्नल है जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है ना, जो ट्रांसमिट करने के लिए रेडी है, ट्रांसमिटेबल सिग्नल, ठीक है,
उसके पास एनर्जी ज्यादा रहना चाहिए, तो उसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होना चाहिए, जो मैं तुमको दिखा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या है ओवरऑल एक बार देख लेते हैं। पहले से मैं एक बार पढ़ता हूं डेफिनेशन को। इट इज द प्रोसेस इन व्हिच सम कैरेक्टरिस्टिक्स एम्पलीट्यूड हो जाए, फ्रीक्वेंसी हो जाए, फेज हो जाए ऑफ ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, यानी कि ये, ठीक है, ये क्या है, कैरियर वेव इज वेरी चेंज होगा इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल। लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल जो है, इसको हम लोग अब से क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोल के बोलेंगे। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई यूज द वर्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इट शुड मीन व्हाट, मैसेज सिग्नल। ये टर्मिनोलॉजी है, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो व्हेन आई से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, इट शुड मीन मैसेज सिग्नल, जो वॉइस में बोल रहा हूं एग्जांपल के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, देखो समझने का ट्राई करो। लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल या मैसेज सिग्नल जो होता है ना, वो सुपर इम्पोज होता है। सुपर इम्पोज इंपॉर्टेंट वर्ड्स इनको है ना, अंडरलाइन करो। ठीक है, सुपर इम्पोज है मतलब इसके ऊपर, मतलब हम लोग मैं करके दिखाता हूं, दैट विल बी मच बेटर। सुपर इम्पोज माने हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। ये अभी दिखता कैसे हम लोग देख लेते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। ये देखो, अभी इसका फ्रीक्वेंसी कम है, एनर्जी भी कम है, तो इसको भेज नहीं सकता। इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसका एनर्जी भी ज्यादा है, तो इसको भेज सकता है। लेकिन इसको भेजकर क्या फायदा होने वाला है, यहाँ पे मेरा इंफॉर्मेशन कुछ है क्या, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे डायरेक्ट भेज दूंगा, वहां पे नॉइज के जैसे सुनाई देगा, फायदा नहीं है। तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है, मतलब ये जो लो फ्रीक्वेंसी जो मैसेज सिग्नल है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोल रहे हैं। इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे। सुपर इम्पोज मतलब ये देखो, मान लो ये जो इसका जो इसको क्या है बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इसका एम्पलीट्यूड, राइट, एम्पलीट्यूड। तो जो चैप्टर में यूज होने वाला है उसी को मैं समझा देता हूं यहाँ पे, और डेप्थ में समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का समझ लो। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या बोला था, एक तो एम्पलीट्यूड बोला था। तो एम्पलीट्यूड को अगर हम लोग चेंज करता है कैरियर वेव का, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम। अगर हम लोग कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, और अगर हम लोग कैरियर का फेस को चेंज कर रहा है, फेस एंगल को, तो उसको हम लोग बोलता है फेस मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन से इंपॉर्टेंट ना तमका लास्ट सिंप्लिफाई म्हणतो जे मुसी मॉड्यूलेशन है कि नो मॉड्यूलेशन है कि मॉड्यूलेशन का कोई अनेक खंड में होता है। वन इज कोई भी मैसेज सिग्नल से ना परफेक्टली साइनोसॉइडल होती सुमायना नत्र, सो सुमायना परफेक्टली साइनोसॉइडल ओइ देबो जाय आइना नाम इसे जरूरी तो नहीं है कि इसको मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो साइनोसॉइडल जैसा ही निकलेगा, है ना। तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट हमेशा साइनोसॉइडल ही निकले। सो व्हाट आई कैन डू इज इसे आई अथवा मोमो के सॉरी, तो से ये मैसेज सिग्नल है एमटी मतलब जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, राइट। सो मान लेते हैं कुछ ऐसा टाइप का मतलब चलो ऐसा मान लो, ठीक है, समथिंग लाइक दिस को कुछ भी हो सकता है ना, ना परफेक्टली साइनोसॉइडल निकलना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है इसका क्या रहता है, या फिर मैसेज सिग्नल जो है इसका फ्रीक्वेंसी लो रहता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लो मतलब एनर्जी भी लो, राइट। इसको हम लोग भेज नहीं सकता, बिकॉज जो भेजेंगे इट विल बी थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड यू नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका खासियत क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में सीखा था, उसका एनर्जी, वो एनर्जी कैरी करके लेके जाता है, राइट। तो कम एनर्जी होने की वजह से आई वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट और आई एम ट्राइंग टू कन्वे, बहुत दूर तक एनर्जी लॉस हो जाएगा, एटेन्यूएशन हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वी नीड ए हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि हाई एनर्जी वाला एक वेव चाहिए। ये रहेगा हम लोगों का ट्रांसमीटर में, ठीक है, ट्रांसमीटर में। तो ये इसका हाई फ्रीक्वेंसी जो है उसको मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, ठीक है। लेट मी टेक दिस कैरियर सिग्नल टू बी CT. Both the modulating signal and the carrier signal are a function of time. This is the modulating signal and this is the carrier signal. हम लोगों का जो इंफॉर्मेशन है, मैसेज जो है यहाँ पे है, यही हम लोगों का मैसेज है,
यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम लोग इसको भेज सकता है क्या? इज इट, कैन वी ट्रांसमिट दिस? कैन वी ट्रांसमिट दिस? नो. कैन वी ट्रांसमिट दिस? Can we transmit this? Yes. But is the information or message available here? No. Then what do we have to do? We have to superimpose this into this. ठीक है, पहले के जैसा मैं इसको थोड़ा रेड कलर से दिखा देता हूं. ठीक है, ठीक है. ये जो वेरिएशन हो रहा है, यही चीज को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मैं करूंगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. कैरियर का एम्पलीट्यूड को मैं मॉडिफाई करूंगा. मॉड्यूलेशन जो वर्ड है, मॉडिफाई, यू कैन रिलेट इट, राइट? तो कैरियर का एम्पलीट्यूड जो है, देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम है ना सबका, नो चेंज इन एम्पलीट्यूड, लेकिन इसको हमको वेरी करेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं. ठीक है, ओके. चलो अभी क्या करूंगा? ऐसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से, मॉड्यूलेटिंग का जगह मैसेज सिग्नल, जहां पे हम लोग इंफॉर्मेशन या मैसेज है, उसको क्या करना है? What was the word? Superimpose. Superimpose. ये वर्ड अंडरलाइन कराया था, इंपॉर्टेंट है बोल के. देखो अभी क्या करेंगे इसको. जस्ट मागी वेरिएशन से, मतलब ये टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, मतलब इसका देखो एम्पलीट्यूड. यही यहाँ पे तुम क्या करो? प्लॉट कर दो, मतलब ऐसा, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ओके. एंड देन व्हाट यू डू इज, हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज किया है किसके ऊपर? सुपर इम्पोज किया है किसके ऊपर? हम लोग मान लेते हैं इसको, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है बोल के मान लो. ठीक, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दो. देखो वही वाला कैरियर जो सीटी था हम लोगों का कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं? एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे हैं. किसके हिसाब से? मैसेज सिग्नल के हिसाब से. ठीक है, देखो ऐसा. ठीक है, तो ये क्या किया हम लोगों ने? कैरियर के ऊपर हम लोगों ने मैसेज सिग्नल को सुपरइम्पोज कर दिया. राइट? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस. अभी इसको, अभी मैं क्राइटेरिया देख लेता हूं. इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? हाँ है. एनर्जी क्या ज्यादा है? हाँ है. क्या इसमें हम लोगों का मैसेज कंटेन है? हाँ है. तो इसको भेज देंगे. फिर ये जाएगा हम लोगों का रिसीवर में, और रिसीवर में इसका ठीक उल्टा होता है, क्योंकि वहां पे क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो मिलेगा हम लोगों को, उसको हम लोग मतलब सुन नहीं पाएंगे, यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं होगा. तो सो दैट इट बिकम्स ए यूजफुल इंफॉर्मेशन, हम लोगों को इसका उल्टा करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डीमोडुलेशन. उस चीज को हम लोग अभी देखते हैं. ओके, चलो अभी डीमोडुलेशन जैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया है. क्या है, क्या लिखा हुआ है? दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन. डीमोडुलेशन है, ठीक है ना? मॉड्यूलेशन की उल्टा, ऑपोजिट. ठीक है, let's see the definition. The process of extracting the message या फिर information from the carrier wave at the receiver is start as demodulation. मतलब हम लोगों का मान लो कि अभी कम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रांसमीटर में क्या किया? मैसेज सिग्नल को लिया, भेज नहीं सकता था, मॉड्यूलेशन किया, कैरियर वेव में क्या डाल दिया? यहाँ पे क्या है? सिर्फ कैरियर वेव नहीं है, क्या भी है? मैसेज सिग्नल भी मतलब इंक्लूडेड है. फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, भेज पाया. भेजने के बाद ये हम लोगों का रिसीवर, इसको मैंने शॉर्टकट में RX बोल दिया था, रिसीवर में हम लोगों ने रिसीव कर लिया. ठीक है, अभी हम लोगों का ओरिजिनल जो सिग्नल था वो तो कुछ ऐसा था ना, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या लो था, और हम लोग सुन पाते थे उसको. मैं इसको एक साउंड सिग्नल बोल के मान रहा हूं, जो मैसेज है साउंड के फॉर्म में है बोल के मान रहा हूं. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को ये जो सिग्नल है ना, जो रिसीव किया, रिसीव सिग्नल है, यही है वो जो सिग्नल जो हम लोग रिसीव सिग्नल बोल के बोलते थे. यानी कि रिसीव सिग्नल क्या है? कैरियर वेव प्लस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे. यहां से क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे. एक्सट्रैक्ट करके क्या बना देंगे? फिर से वही बना देंगे जो हम लोगों ने भेजा था. तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? उसका मॉड्यूलेशन का रिवर्स प्रोसेस किया. ठीक है, दिस इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन. हम लोग एक्चुअली यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यू कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे जो एनवेलप है, ठीक है, वर्ड को याद कर लेना. एनवेलप, एनवेलप, कैरियर का जो एनवेलप है, यहाँ पे तो एक्चुअली रेड कलर से चाहिए बना था, मैसेज सिग्नल से चाहिए दो
अदुगी मतुंगिना अइना करेगा कैरियर के एम्पलीट्यूड से वेरी करेगा ना। या तो मैं उसको उल्टा भी सोच सकता हूँ, मैं ये सोच सकता हूँ कि मैंने पहले क्या बनाया, कैरियर का क्या किया, कैरियर के एम्पलीट्यूड को वेरी किया, चेंज करता गया। जो मांगी एनवेलप तो मांगी कोवरिंग से मसी से अकोगी कई माले अकोगी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मानना ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यही चीज को बोलते हैं एनवेलप, ठीक है। इफ यू गेट दिस वर्ड डोंट गेट कंफ्यूज। सुपरइम्पोज करने पर हम लोग का कैरियर वेव का एनवेलप जो है क्या देता है, हम लोगों को ऐसा सिग्नल देता है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया ऐसा सिग्नल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डीमोडुलेशन। चलो लास्ट टर्म बेसिक टर्मिनोलॉजीज था रिपीटर है से कहीं रिपीटर है कि मीन में दूंगा हम लोग रिपीट तो दो कई पर रिपीट तो दोनों का डेफिनेशन है। रिपीटर क्या करता है, इट पिक्स अप द से आसमते आपने इट पिक्स अप द सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर, शॉर्टकट है ये, एम्प्लीफाइज इट एंड रीट्रांसमिट इट टू रिसीवर। या टर्म है डेफिनेशन, हम लोग इसको थोड़ा समझने का ट्राई करता है एग्जांपल से। क्या है ये, क्या है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। मतलब रिपीटर से कदों मम्मी ट्रांसमिट तो वसु मम्मी एंड देन रिसीव तो वसु मम्मी, राइट। ट्रांसमिट तो वसु मम्मी एंड देन रिसीव तो वसु मम्मी। मैं खबर कहीं उसका काम क्या है, यूज कहीं मांगी टू एक्सटेंड द रेंज। रेंज है निकाल रेंज नो बैंडविड्थ की रेंज तो लगते हैं डिस्टेंस की रेंज। तो द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस दैट आई कैन कम्युनिकेट विद माय वॉइस इज लेट्स से अप टू 300-400 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर तो नहीं होगा, तो वो मेरा रेंज है। तो अगर मुझे एक्सटेंड करना है, मान लो सिंपल में समझने की कोशिश करो इसको, मुझे किसी को बुलाना है जो कि लेट्स से 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो डायरेक्टली मेरा आवाज तो 1 किलोमीटर तक तो पहुंचेगा नहीं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मतलब 200-300 मीटर की दूरी पे जो कोई खड़ा है उसको मैं बोलूंगा कि उसको बुलाऊंगा, जो भी है उसको बुलाओ। तो वो भी तो उसका भी तो नहीं पहुंच पाएगा, फिर वो आगे वाला 200-300 मीटर आगे जो इंसान है उसको बोलेगा कि ये इसको बुला रहा है। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। इसको ग्राफिकली मैं दिखाने का ट्राई किया हूं यहाँ पे। ये सब क्या है, ये सब रिपीटर्स है, ठीक है। तो क्या करेगा, मान लो ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, यहां से लेके यहां तक इंफॉर्मेशन को भेजना मेरा काम है, मेरा टारगेट है। तो क्या करूंगा, रेंज ज्यादा नहीं है इसका, सपोज मान लो रेंज ज्यादा नहीं है, यहां से यहां तक ये पहुंचा, ठीक है। ट्रांसमिट किया, इसने रिसीव कर दिया। ये एक रिपीटर है, रिपीटर तो ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। तो पहले इसने रिसीव किया, ठीक है, लेकिन अभी ये क्या करेंगे, इसको ट्रांसमिट करेंगे। ट्रांसमिट किया, फिर इसे देखो यहाँ पे हिल माउंटेन वगैरह जो भी होगा उसके वजह से तो नहीं पहुंच पाएगा ना यहाँ तक, ठीक है। तो अभी ये इसको यहाँ तक ट्रांसमिट कर देगा, इसने रिसीव किया, फिर से ये क्या करेगा, ट्रांसमिट किया, रिसीव किया, तो देखो लास्ट में रिसीवर तक पहुंच गया। तो एक रिसीवर रिपीटर क्या है, एक रिपीटर एक ट्रांसमीटर और रिसीवर का कॉम्बिनेशन है, जिसका यूज क्या है, हम लोग का कम्युनिकेशन का रेंज को, डिस्टेंस को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो यही पे खत्म बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अभी हम लोग बैंडविड्थ जो हम लोगों ने बोला था, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको हम लोग थोड़ा इन डेप्थ में जानने का कोशिश करते हैं। दैट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक। चलो अब धीरे धीरे बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स को, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स बैंडविड्थ यदि कहा है ना रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जहां पे इक्विपमेंट ऑपरेट कर पा रहा है ना। एग्जांपल दिया था मैंने रेडियो का, तो रेडियो में तो क्या होता है, स्पीच मतलब ऑडियो स्पीच सिग्नल्स वगैरह रहता है ना। तो वहां पे जो रेडियो का इतना से इतना तक उसका रेंज है, मतलब दिखाया था है ना, उसके आगे नहीं उसके पीछे नहीं। तो जितना रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के अंदर वो ऑपरेट कर सकता है, तो उस डिवाइस का वो बैंडविड्थ है, ठीक है। उतना ही वो रिसीव कर सकता है, उतना ही वो ट्रांसमिट भी कर सकता है, अगर कर सकता है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैसेज सिग्नल्स है। मैसेज सिग्नल्स जो है वो बहुत तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वॉइस जो मैं बोल रहा हूँ, स्पीच से जो मैसेज सिग्नल है ना, उसी को लेके मैंने मॉड्यूलेशन में एग्जांपल दिखाया था। ड्यूएटिक ऑडियो अजी वॉइस या स्पीच एक ही बात है, अदर ऑडियो में माना दे ऑडियो यदि कहीं लाके में म्यूजिक वगैरह या फिर फोन पे बात करते करते ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया मान लो, ये सब क्या है, ऑडियो के अंदर आता है ना। एग्जैक्ट तो सेम नहीं है, जो मुंह से निकल रहा है वही वॉइस है, स्पीच है, लेकिन जो हम लोग डिवाइस के थ्रू से जो हम लोग सुन पाते हैं है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडियो सिग्नल्स बोलते हैं, राइट। और मैसेज सिग्नल वीडियो भी हो सकता है,
पिक्चर भी हो सकता है या फिर बाकी कंप्यूटर डेटा टेक्स्ट अपने टेक्स्ट तो हमारी बात ईमेल तो हमारी सिग्नल पे ना मैसेज सिग्नल हमारी यहाँ से मैंने ईमेल भेजा फोन से वहां पे रिसीव कर लिया, तो ये भी एक मैसेज सिग्नल नहीं हुआ क्या? हुआ। तो अभी हम लोग देखेंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन हाय बदी स्पीच सिग्नल से ट्रांसमिट करने दमकता नंगी बैंडविड्थ से क्या मतलब होता है को अदो कितना है यहाँ पे 300 हर्ट्ज टू 3100 हर्ट्ज की मनुंगा होगी क्या मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मतलब होता है। तो यही मेरा क्या हो गया बैंडविड्थ हो गया। बैंडविड्थ को दिखाने का दो तरीका था, या तो तुम रेंज दिखा लो या तो तुम कितना है नंबर 3100 माइनस 300 करने से कितना आ रहा है 2800 हर्ट्ज आ रहा है ना। तो दो तरीका है दिखाने का, इसमें मैं दोनों तरीका दिखा दिया, बाकी जितना है उसमें मैं ये वाला यूज करूंगा, ठीक है। तो इतना कहां से स्टार्ट कहां से खत्म वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, तुम बस देखो कि कितना के अंदर ऑपरेट हो रहा है, राइट। तो स्पीच सिग्नल हम लोगों ने देख लिया, तुमको याद करना है इसको। ऑडियो के लिए देखो ऑडिबल इंसान लोग जो सुन पाता है वो फ्रीक्वेंसी रेंज कितना से कितना के अंदर होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 किलोहर्ट्ज ना। उसके आगे या पीछे क्या हो जाता है अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक जो इंसान सुन नहीं पाता, राइट। बैट्स एंड डॉग्स वगैरह वगैरह सुन पाता है। तो इसीलिए बैंडविड्थ कितना चाहिए ऑडियो के लिए 20 किलोहर्ट्ज। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इंसान जो सुन पाता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 किलोहर्ट्ज तक रहता है। तो अगर तुम इसको माइनस करो 20 किलोहर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज माइनस करो तो अप्रोक्सीमेटली 20 किलोहर्ट्ज नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा ना, इसीलिए बैंडविड्थ डायरेक्टली ले जाए 20 किलोहर्ट्ज। वीडियो के लिए देखो डेटा जितना कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा होता जाएगा ना हम लोगों का फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि उसको सेंड करने के लिए भी उतना ही एनर्जी चाहिए। एंड यू नो दैट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। तो वीडियो का देखो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है 4.2 मेगाहर्ट्ज, मेगा मतलब 10 to the power 6 ना, किलो मतलब 10 to the power 3, तो ये बढ़ रहा है। वीडियो सेंड करने के लिए हम लोगों को ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, ओके। उसके बाद टीवी में तो क्या होता है बोथ वीडियो एंड ऑडियो रहता है ना। टीवी जेम तमदा कोई वीडियो शूट फंगी एंड देन ऑडियो शूट ओवर फंगी अदो ना। यहाँ पे बैंडविड्थ कितना है देखो ज्यादा हो गया, बैंडविड्थ 6 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि कहां से शुरुआत हो रहा है कहां पे खत्म हो रहा है वो याद नहीं रहने से भी ये जो है ये सब का तुमको याद करना है। टीवी के लिए कितना था 6 मेगाहर्ट्ज, वीडियो के लिए कितना था 4.2 मेगाहर्ट्ज, ऑडियो के लिए कितना है 20 किलोहर्ट्ज और स्पीच के लिए कितना है कितना 2800 हर्ट्ज, ठीक है। और ये ज्यादा क्यों होता जा रहा है, डेटा जितना कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, मैसेज सिग्नल जितना कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है उतना ही हम लोगों का एनर्जी ज्यादा चाहिए इसको ट्रांसमिट करने के लिए। एंड सिंस वी नो दैट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो चलो अभी हम लोग बात करते हैं कैसे एक डिजिटल सिग्नल को सिग्नल दो तरीके का होता था, मैसेज सिग्नल दो तरीके का हो सकता था, एक तो एनालॉग सिग्नल एक तुम्हारा डिजिटल सिग्नल, राइट। तो अभी हम लोगों ने जो देखा प्रीवियसली वी हैव सीन दैट हाउ कैन वी ट्रांसमिट ए एनालॉग सिग्नल, राइट। इसके लिए कितना बैंडविड्थ लगेगा वगैरह वगैरह। अभी डिजिटल सिग्नल को अगर हम लोगों को ट्रांसमिट करना है, डिजिटल सिग्नल आप लोगों को पता है कि क्या रहता है, इसका बस दो वैल्यूज रह सकता है, या तो 1 रहेगा या तो 0 रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रांसमिट करेंगे? डिजिटल सिग्नल जो है कंप्यूटर में तो काम कर सकता है, वोल्टेजेस अगर है, वोल्टेज अगर कुछ है तो हाई, वोल्टेज अगर नहीं है तो लो, तो वो कंप्यूटर में हम लोग ऑपरेट कर सकता है। लेकिन हम लोग जो ट्रांसमिट करेंगे वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही ट्रांसमिट करेंगे, है ना। एरियल वेव तो एक रेडियो वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एक स्पेक्ट्रम रहता था उसमें रेडियो वेव जो है जिसका फ्रीक्वेंसी क्या रहता था ज्यादा या कम रहता था, याद करो। तो एक डिजिटल देखो डिजिटल तो नहीं होता है, ईएम वेव जो है ना वो हमेशा क्या रहता है कंटिन्यूअस वेव रहता है। तो हम लोग कैसे एक डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है और रिसीव कर सकता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखो। तो हाउ कैन वी अप्रोक्सीमेट, ठीक है, हाउ कैन वी अप्रोक्सीमेट ए रेक्टेंगुलर वेव जो कि डिजिटल होता है इन टर्म्स ऑफ ए साइन वेव, साइनोसॉइडल वेव या फिर साइन वेव जो कि एनालॉग रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली हम लोग सेंड करेंगे एनालॉग को ही, ठीक है, लेकिन उस एनालॉग में क्या छुपा रहेगा, हम लोगों का डिजिटल छुपा रहेगा। तो ये किस तरीके से काम करता है हम लोग थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डॉटेड जो मैंने दिखाया है ये क्या है, ये हम लोगों का रेक्टेंगुलर वेव है,
जो कि डिजिटल है, ठीक है। यहाँ पे डॉटेड जो दिखाई दे रहा है जिसका वैल्यू 1 है देखो, और यहाँ पे जो है इसको 0 मान लेंगे हम लोग। इसको सेंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक एनालॉग सिग्नल से या फिर एक साइन वेव से काम नहीं चलेगा, हम लोग को बहुत सारा साइन वेव क्या क्या करना पड़ेगा, सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। सुपर पोजिशन तो याद है शायद तुम लोगों को। तो इसको कैसे करते देखते, तुम लोगों को ये दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का जो साइन वेव, जो पहला जो मैंने ड्रॉ किया है, इसका फ्रीक्वेंसी को हम लोग मान रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पहला फ्रीक्वेंसी है f0, ठीक है। उसके बाद उसमें हम लोग ऐड करेंगे क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करेंगे सेकेंड हार्मोनिक्स, इसको बोलते हैं हार्मोनिक्स। मतलब यहाँ पे तुम देखो, यहां से लेके यहां के बीच में ये कितना पीक मिला, ब्लैक वाला एक पीक मिला, वे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, तुम अगर ध्यान से देखोगे, ये रेड वाला को देखो, कितना पीक है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना पीक है, एक और 2 पीक है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2f0 क्यों नहीं लिखा, f0 प्लस 2f0 क्यों लिखा, यहाँ पे तो 2 है तो सिर्फ 2f0 लिखने से काम बन जाता। मैंने इसको f0 प्लस 2f0 इसीलिए लिखा क्योंकि हम लोगों का ये जो 2 हार्मोनिक्स है ना, यहाँ पे कंटेन है, ये ब्लैक वाला जो है ना, ब्लैक वाला यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक है, इसके अंदर भी ये 2 रेड वाला कंटेन है, इसमें समाया हुआ है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा, f0 प्लस 2f0 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सुपर पोजिशन हो रहा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ऐड करता जाऊंगा। ये ऐड क्यों कर रहा हूं तुम लोगों को समझ में आएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ये रेड वाला था, इसमें अभी मैं थर्ड हार्मोनिक्स क्या बोल रहा हूं, वर्ड का नाम हार्मोनिक्स हमेशा फ्रीक्वेंसी के साथ रहता है। तो यहाँ पे कैसे मैंने थर्ड फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया, थर्ड हार्मोनिक को। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये ब्लू कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखो, यहां से यहां तक के बीच में ब्लू का कितना पीक आ रहा है, 1 2 3 पीक आ रहा है कि नहीं, है ना। और तुम ध्यान से देखोगे तो यहां से यहां तक ये जो रेड का पीक है, यहां से लेके यहां तक, इस पीक के बीच में ये ब्लू वाला 2 आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो सिंपल टर्म्स में अगर तुम समझना चाहते हो, अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो यहां से यहां तक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 ब्लैक वाला देखो, क्लियर। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। सेकेंड, हम लोग जब सुपर इम्पोज करेंगे सेकेंड हार्मोनिक्स को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ f0 प्लस 2f0, इसमें क्या हो रहा है, यहां से यहां तक के बीच में देखो कितना पीक आ रहा है, रेड कलर का 2 पीक आ रहा है कि नहीं, है ना। तो ये सेकेंड हार्मोनिक आ गया, लेकिन ये जो 2 हार्मोनिक्स है इसी के बीच में आ रहा है, ठीक है, ये पहला फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक जो है कितना है, 2f0 है, लेकिन इस 2f0 पे मैंने इसी के अंदर समा दिया है, दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव रिटन f0 प्लस 2f0, ठीक है। तो वैसे ही इसको मैं क्या करता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा। इसे बढ़ाने से क्या होगा, लेट मी ट्राई टू शो यू। तो बढ़ाने से क्या होगा, सी, इसको तो मैंने एक साथ दिखा दिया था, बहुत सारा कॉम्प्लिकेट कर दिया। अगर मैं ये रेक्टेंगुलर वेव को साइनसोइडल में सुपर इम्पोज करना चाहता हूं, तो देखो ये जो है, अगर ऐसा करके मैं ऐसा 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 और इसको जितना छोटा बनाता जाऊंगा, ये साइनसोइडल होने के बावजूद रेक्टेंगुलर के जैसा क्या होने लगेगा, दिखने लगेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, साइनसोइडल होने के बावजूद, एनालॉग होने के बावजूद किसके तरह दिखने लगा, रेक्टेंगुलर के जैसा दिखने लगा कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है मैंने, we can decompose a rectangular wave into a superposition of several sine waves of frequencies। देखो f0, 2f0, 3f0 मैंने यहाँ तक ही दिखाया था, लेकिन ये कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। अभी मैंने n क्या लिखा है, n is an integer extending up to infinity। बहुत सारा आने से ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, एग्जैक्टली हम लोगों का रेक्टेंगुलर वेव तो ऐसा नहीं था, डिस्टॉर्टेड नहीं था, ऐसा था, लेकिन ऐसा था, पूरा रेक्टेंगुलर वेव था, 1 and 0 डिजिटल सिग्नल। तो इसको प्रोड्यूस करना है हम लोगों को, तो क्या चाहिए हम लोगों को, इनफाइनाइट, मतलब f0, 2f0, 3f0, 4f0 ऐसा कर करके इनफाइनाइट तक हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे, तब जाके ये जो डिस्टॉर्शन जो है थोड़ा स्मूथ होने लग जाएगा,
ना इसको सुपरपोज इम्पोज करता जाओ, ये थोड़ा स्मूथन होता जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए तो हम लोगों को कितना बैंडविड्थ चाहिए, सोच के देखो, बढ़ता ही जा रहा है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ चाहिए, जो कि क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब भी हम लोग कोई डिजिटल सिग्नल को मतलब सेंड करता है, मॉड्यूलेशन करके सेंड करता है, तो वहां पे क्या होता है, जो ट्रांसमिटेड सिग्नल था ये वाला, उसके जैसा एग्जैक्टली नहीं मिलता, थोड़ा सा डिस्टोर्टेड मिलता है। समझ में आ रहा है? ये और ये देखने में एग्जैक्टली सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टोर्टेड है, ठीक है। प्रैक्टिकली इनफाइनाइट बैंडविड्थ होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम लोग जितना हार्मोनिक्स को बढ़ाते जाएंगे, जितना हार्मोनिक्स ज्यादा होता जाएगा, उतना ही वो हायर हार्मोनिक्स का कंट्रीब्यूशन जो है इस वेवफॉर्म को इस वेवफॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या वाइस वर्सा, वो नेग्लिजिबल होता जाएगा। हार्मोनिक्स जितना बढ़ता जाएगा, उतना ही उसका कंट्रीब्यूशन रेक्टेंगुलर वेव को बनाने के लिए नेग्लिजिबल होता जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में ये होता है कि अगर हम लोगों का बैंडविड्थ इनफाइनाइट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इफ इट इज लार्ज इनफ, अगर वो बहुत ज्यादा है कि हम लोगों का मतलब सेवरल F0 से लेके मान लो 1000-2000 हार्मोनिक्स तक एकोमोडेट कर सकता है, तब जाके शायद हम लोगों का जो डिजिटल सिग्नल जो है, जो हम लोगों ने ट्रांसमिट किया था, वैसा हम लोगों को थोड़ा 99.9% मतलब एग्जैक्टली सेम मिल रहा है। दैट इज द बेस्ट वी कैन डू, ठीक है। तो जितना बड़ा तुम्हारा बैंडविड्थ अवेलेबल रहेगा, इनफाइनाइट तो नहीं, लेकिन अगर वो हार्मोनिक्स बहुत सारा एकोमोडेट कर सकता है, तो हम लोगों का डिजिटल सिग्नल जो है उसको हम लोग क्या कर सकता है, ट्रांसमीटर में डिमोडुलेट करके हम लोगों को जैसा भेजा था वैसा मिल सकता है। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जितना टर्मिनोलॉजीज मैंने यूज किया है यहाँ पे, उसको तुम याद कर लो, दैट विल बी इनफ फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। चलो, देखो मैंने बोल तो दिया है, लेकिन इट विल बी बेटर अगर तुम लोग ये लिख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या बोला, द रिसीव रेक्टेंगुलर वेव इज डिस्टॉर्टेड ड्यू टू हायर हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स जितना ज्यादा होता जाएगा, उतना ही ज्यादा हम लोगों का क्या है, वो जो ये जो रेक्टेंगुलर वेव जो था, हार्मोनिक्स जितना होता जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, स्पाइक्स आने लग जाएगा, तो डिस्टॉर्टेड होता जाएगा, है कि नहीं। तो वो यही मीन कर रहा है पहला लाइन। सेकंड क्या बोला था मैंने, प्रैक्टिकली क्या होता है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ जो है पॉसिबल नहीं है कि नहीं, वो बोला था। थर्ड क्या बोला, इसीलिए क्योंकि हम लोगों का बैंडविड्थ जो है इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बैंडविड्थ लिमिट हो जाएगा। एक्चुअली में तो इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, इसलिए बैंडविड्थ लिमिट हो जाएगा। और ये कैसे होगा देखते हैं। हम लोगों का जो हायर हार्मोनिक्स का जो कंट्रीब्यूशन जो है हम लोगों का रेक्टेंगुलर वेव मिलने के लिए, वो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली बैंडविड्थ जो है इनफाइनाइट नहीं होता। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोगों का बैंडविड्थ अगर लार्ज इनफ है, मतलब इतना बड़ा है, इनफाइनाइट नहीं होने से भी काफी बड़ा है, कि बहुत सारा हार्मोनिक्स को एकोमोडेट कर सकता है, तो हम लोग रिसीवर में हम लोगों का रेक्टेंगुलर वेव जो था वो ऑलमोस्ट हम लोगों को मिल जाएगा। तो बस इसका इतना ही है, लिख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो।